राइट? फटाफट से कैमरा ऑन करो। यस। सबसे पहले सब लोग टाइप करेंगे कि सबका कौन कौन सा पेपर्स हो गया है, कौन कौन सा पेपर्स क्लियर है और कौन कौन सा पेपर्स का तैयारी चल रहा है। सबसे पहले चैट बॉक्स पे आप लोग ये टाइप करेंगे, फिर आज का जो सेशन है हम लोग चालू करेंगे फटाफट से। जो भी सेशन में नया आ रहा है सब लोग को कैमरा ऑन करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक चीज को बार बार नहीं बोला हूँ, तो तुरंत सेशन से निकलवा दूंगा। If there is anyone from the admin, please remove the person, those who are not switching on the cameras. It's a request. फटाफट से बताइए कौन कौन सा पेपर्स आपका क्लियर है एंड कौन कौन सा पेपर्स आपने ओके सो यस वी हैव गॉट सम रेस्पॉन्सेस। सो CB2 इज पास, CB1 एंड CB3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सरगम गुप्ता, ओके ओके दैट्स ग्रेट। प्लीज सब लोग फटाफट से चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर दीजिए। सब लोग प्लीज चैट बॉक्स पे फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए। ओके देखिए, तो आई जस्ट स्टार्ट कि भाई इसका नीड क्यों आ रहा है, ठीक है ना। सो एज अ मेंटर वी ऑलवेज फोकस नॉट ओनली जस्ट कि भाई एक पेपर का एडमिशन ले लिया एंड आपका जो आपको करना है आप कर रहे हो, वैसा नहीं है, आपको भी मालूम है। तो विद द रिसेंट फस दैट इज देयर, सो फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक 3 years ago, सो या फिर कोविड के पहले की बातें करते, जब हम लोग जब मैं पेपर लिखता था, पेन एंड पेपर पे लिखता था, बिकॉज मैथ इज समथिंग दैट वी नीड टू सॉल्व, राइट। चलो ठीक है, विद द एडवेंट ऑफ कोविड एंड वट एवर इज द थिंग कि भाई 2020 ऑनवर्ड्स पीपल शिफ्टेड टू ऑनलाइन मोड। बट अगर आप देखेंगे 2020 के बाद में बहुत ज्यादा कोई मेजर डेवलपमेंट्स इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं आया, एक्सेप्ट इंट्रोड्यूसिंग द पेपर बी पार्ट, which I was very proud of. So now the point is that if you talk about what are the challenges which the student community is facing, right? अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर we need to actually discuss this thing, right? कि what are the challenges the student community is facing. So one of the major challenge which you all are facing is the inconsistency. Inconsistency in terms of commitments, inconsistency in terms of the passing rates, right? And inconsistency in terms of the like anything, if you talk about the exam pattern or maybe the result lag, okay? So नाउ क्या हुआ, जब जब हमने पाथ बनाया तो उसमें हमने रियलाइज किया कि नहीं, देयर इज समथिंग बेटर ऑल्सो। तो अब कोई में से ये क्वेश्चन कर सकता है कि सर 2 साल पहले 3 साल पहले व्हाई डिडंट वी स्टार्ट फ्रॉम मे बी एक्स बॉडी और मे बी फ्रॉम वाई बॉडी। तो उस समय उतना अवेयरनेस नहीं था। सिंपल आंसर इज उस समय उतना अवेयरनेस नहीं था। सी, so the point is that it's a very niche market. In actual, it's a very niche market, well-respected course, distance learning program. So you need to basically understand how the finance and the analytics world work. So there are major courses like CA is there, MBA is there, CFA, FRM, actuaries, and data analytics. These are the major courses which the students they pursue. So if you talk about the actuaries market, it's morely concentrated into the insurance domain. There is more and more roles evolving in the banking domain, in the data analytics domain, in the consulting domain, where you do all types of risk consulting. There is employment in the pensions. Okay. So it's not that it's totally into insurance, but again, it's insurance dominated. And we don't sell policies. We basically assess the risk. We try to mitigate them. Again, there are new lines of business coming up, like there is catastrophic risk modeling is there, weather related disturbances are there. So there are more and more work coming up from the America and the, so these are the basically divisions. So basically there is the UK and the European markets. There is APAC, which is the Asia Pacific region, and there is the American region, right? So basically we'll always see there is APAC, there is EMER, and there is AMER. These are the regions mainly from the, and India is becoming the global hub of talent for actuaries and for professionals like US, CPA, etc. So now the point is that whenever I go to a conference, right? So it was also a new thing for me.
So we have basically seen. So for example, when I went to Bombay, so we actually tried to enhance the calculator for you all, right? So previously we were using 82 ES plus, and now we're using 991 for IFO students, right? But the IS students are currently using the 82 ES plus version only. The point is that you need to adapt to situation, right? You need to adapt to situation when you see something new coming up on the table. So you need to adapt to the situation. So the point, first we'll discuss the major challenges which we are facing. So the point is that previously we were committed some kind of offline exam, but offline also again in typing format, which is still today not very comfortable for a person like me also. So I am giving exams, but if someone asks me to give exams, maybe in typing format, in maybe CS2, a paper like CS2, maybe CM2, I'll be a bit scared, right? So again, the point is that there was commitment to conduct the exams in the MCQ format. So it was supposed to be conducted in maybe 4 times a year, but again it was withdrawn and it was done 2 times a year. And again, if you see now, there is not much for students those who have cleared the CMCS and the CB exams, right? But the student, those who are in the initial exams, those who have not given any exams, or maybe those who have cleared maybe 1 or 2 exams, maybe if you have cleared the 4 exams, which is CM1, CS1, and CB1 and CB2, there is lot more for you in the like in the new bodies which are trying to establish their footpaths in basically their footprints in India. Now, first you need to understand the value of a qualified actuary. So if you're doing it from the Indian body or from the IFOI body or from CAS or from SOA, all these bodies are same. So there is no problem in the jobs part, because jobs is something that you get either from the college part or you apply through LinkedIn, or we have our own placement cell, right? So one more update is that previously our placement cell used to be free, but this is the last time we are offering the services for free, because everything is having a cost attached to it, right? There we need to screen the CVs, we need to train it, and there are a few softwares also. So from basically 2027, like from 2026 and 2027 attempts, it is going to be a paid service, because see, every network that we establish, every channel that we establish, and everything, it involves a lot of costing, right? And to actually train the students, so what we have heard from the feedback of the students, those are given the interviews, कि तुम्हारे बच्चों को कुछ भी नहीं आता, like they don't know how to talk, and everything has a cost. If you call people from the industry, or let's say suppose anything, you need to think in a capitalist manner, like to avail the best quality of service. Like, why do IIM charge so much for 2 years of program? Because they teach you how to sell yourself. So that communication part is lacking if you're doing a distance program like actuaries, CA, CFA, FRM. So we will be bridging the gap from 2027 year graduates onwards. That is the first thing. Now, something that I have been closely observing since the last 3 years, and which I was talking about, is if you are a qualified actuary from any of the bodies, does not matter. Like, value is the same. Value is the same, and there are a lot of job opportunities. So you don't need to think that okay, अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो मेरा ऐसा होगा, या मैं वहां से कर रहा हूँ तो मेरा वैसा होगा. वैसा कुछ भी नहीं है. वैसा कुछ भी नहीं. There are plenty of job opportunities, right? एंड अगर आप द स्केल देखोगे, जो आपका मेजर, अगर आप जॉब मार्केट देखते हो, तो उसको आप डिवाइड कर सकते हो. लाइक देयर इज द कोर इंश्योरेंस इंडस्ट्री विच इज मोस्टली इन बॉम्बे, एंड देन देयर आर द कंसल्टिंग कंपनीज विच आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, राइट? यही दोनों है. कंसल्टिंग मतलब आपका इंडिया कंसल्टिंग भी है, एंड फॉरेन ऑफशोर कंसल्टिंग भी है. तो ऑफशोर कंसल्टिंग जो है, जो मेजर एम्प्लॉयर्स है, जैसे कि आपका टावर्स वॉटसन है, एक्सेंचर है, बिग सिक्स फर्म्स है, तो ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज है, राइट? सो वैसा कुछ नहीं है कि आपने यहां से किया है तो आपका यही जॉब लगेगा. तो ये मिथ आपको दिमाग से अपना निकालना होगा, राइट? नाउ, talking about SOA board, which is the Society of Actuaries. Now, my work is to introduce you to what's best, right? And why it is best. So there are few challenges which we face as a student. First thing is the time lag. So what do you mean by the time lag? Time lag जैसे कि आपका जो, I will request all of you to please switch on the camera first. जो लोग कभी कैमरा ऑन नहीं है, कोई भी अपना कैमरा ऑफ नहीं करेगा. बेस्ट का ट्रेनिंग डे 1 से चालू होता है, और वो आज है. आज वो दिन है. तो अब जैसे इफ यू सी, तो फर्स्ट इज द टाइम लैग. तो टाइम लैग जैसे कि आपका रिजल्ट जब आएगा और आपने जब एग्जाम दिया है. सो
काफी लैग है उसमें, लैग जैसे कि आपका क्लोज टू 3 मंथ्स का लैग है इसमें, ठीक है ना। अभी तो पता नहीं कब तक रिजल्ट आएगा उसमें, मालूम नहीं, वो तो छोड़ो, तो वन ऑफ केस है, बट स्टिल अगर आप देखते हैं तो आपका 3 महीने का लैग है। तो इन एसओए बोर्ड द फर्स्ट 4 एग्जाम्स विच इज योर पी, एफएम, SRM and FAM. So P relates to CS1, SRM relates to your CS2, FM relates to your CM1 first half, and again FAM relates to your contingencies. Except इसके बाद 2 और एग्जाम्स होते हैं आपके, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म, जैसे अगर आपको लाइफ में जाना है तो एल टाइम, अगर आपको जनरल में जाना है तो एस टाइम, और एक होता है आपका आर प्रोग्रामिंग मशीन लर्निंग के ऊपर में, जिसको हम लोग टीए पेपर बोलते हैं, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। तो एसोसिएटशिप के लिए जैसे यहाँ पर 10 एग्जाम्स है, वहां आपके 6 एग्जाम्स होते हैं, 3 VEEs होते हैं और 4 मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। सो नाउ यू नो कि पहला 4 जो एग्जाम है उसका जैसे ही आप देते हो एग्जाम, आपका तुरंत रिजल्ट आता है, तो आपको ये पहला बात मालूम चलता है कि भाई मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है एंड आने वाला टाइम में कैसे स्पेंड करने वाला हूँ, फिर करने वाली। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे कि उनको एक्चुअल करना है कि नहीं करना है। सो फॉर एग्जाम्पल आप वेट करते हो, आप सितंबर में एग्जाम दोगे या फिर आप नवंबर में एग्जाम दोगे, उसका रिजल्ट आएगा आपका जनवरी, तो 1 साल लग जाता है आपको, क्लोज टू 8 मंथ्स 9 मंथ्स लग जाता है आपको ये टेस्ट करने के लिए कि ये कोर्स आपके लिए है कि नहीं। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो स्टक है एकदम इनिशियल लेवल पेपर्स में, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, राइट। और बाकी का भी करिकुलम मैं पूरा समझाऊंगा, बिकॉज आज के दिन पे अगर आप देखते हैं लार्जेस्ट बॉडी जो है क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स का, वो एसओए का है, लाइक 33,000, मैं आपको दिखा भी दूंगा एसओए की वेबसाइट पे, 33,000 क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं एसओए से। एंड अगर आप कॉस्टिंग की बात करते हैं, कॉस्टिंग एसओए में कम है कंपेयर टू IFOA एंड योर IAI एज वेल। सो एसओए का जो इनिशियल एग्जाम स्ट्रक्चर जो है उसमें आपका ग्लोबल पायलट प्रोग्राम में कॉस्टिंग बहुत कम लगता है। सो बाय द टाइम यू आर अ ग्रेजुएट, वी एम कि भाई आपके 5 पेपर्स हो जाए, विच इज योर P, FM, SRM, FAM, LTEM या फिर एसटेम में आपको कोई एक ही देना होता है, बिकॉज उसके बाद का जो करिकुलम है वो आपका एम्प्लॉयर देगा एंड वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। पहले क्या होता था, इंडिया में सिर्फ वही चीज चलता है जो वैल्यू फॉर मनी है, तो पहले ऑपोजिट था, एसओए का महंगा था, IFOA सस्ता था, IAI और भी सस्ता था। बट अभी क्या हो गया, आप देखो IAI का भी फीस बढ़ा है, 15-16 हजार रुपया हो गया, IFOA का बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव अगर आप देखते हो तो जैसे 26-27,000 के राउंड है, बट एसओए का जो पर एग्जाम कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो आपका क्लोज टू 15,000 का राउंड आता है। एंड जो आपका ट्रेनिंग फीस है एसओए का वो भी कंपैरेटिवली काफी कम है। तो अगर मैं पहला 5 एग्जाम्स का बात करूं तो आपका 2 लाख के अंदर अंदर का एक्सपेंस आता है। सो हमारा जो एक्सपेंस आता है वो भी 1 लाख रुपया आता है एंड 5 एग्जाम्स का। एंड अगर आप देखते हो जो आपका इंस्टीट्यूट रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो भी आपका 1 लाख के अंदर ही आएगा। सो इन लेस देन 2 लाख ऑफ रुपीज you're basically clearing the first 5 exams and the फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम्स की अगर हम लोग बात करें तो पहला जो 2 एग्जाम होता है जैसे कि पी और एफएम, ये साल में 6 बार होता है, एसआरएम एफएम साल में 3 बार होता है। सो पॉइंट इज कि आपका जो प्रोसेस है वो काफी फास्ट होता है ना। 3 ईयर ग्रेजुएशन पीरियड, आप पहला जो 5 एग्जाम्स है वो आप क्लियर कर सकते हो 2 साल के अंदर, एंड थर्ड ईयर इज बेसिकली फॉर योर प्लेसमेंट्स, आपको कुछ भी एड ऑन करना है तो आप समझ रहे। नाउ द मार्केट इज ओपन एक्चुअली, एंड जितना भी जीआई लाइंस पे कंपनीज वर्क कर रहे हैं इंडिया में, आप उनसे बस खाली कोई भी अगर आपका सीनियर है जो जीआई में काम कर रहा है, जनरल इंश्योरेंस में काम कर रहा है, आप उनसे पूछना कि वो कौन सा रिसोर्सेज यूज करते हैं, आपको कैश का नाम लेंगे, विच इज कैजुअलिटी एक्चुअल सोसाइटी। बट उसका एक ड्रॉबैक क्या है कि उसमें आपको पहला 1-2 पेपर के बाद ही आपको जीआई लाइंस में ही जाना होता है, राइट। सो बात ये है कि अगर कोई चीज अच्छा है तो आपके सामने रखना मेरा है, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज टू यू। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे मई में एग्जाम है, फिर इसका रिजल्ट आएगा जून जुलाई एंड या फिर आपका अगस्त में रिजल्ट आएगा। बट एसओए में क्या होता है, पहला जो 2 एग्जाम है वो साल में 6 बार होता है। तो बहुत सारे बच्चे, पहला बात तो ये है कि जिनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को एक्चुअली करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्लस उनसे पेपर भी का पूरा प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है। पासिंग रेट एसओए में काफी कंसिस्टेंट है, 40 से 60% का पासिंग रेट है, रिजल्ट्स आपका इंस्टेंट आता है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आर एमसीक्यूज। एंड इफ यू टॉक अबाउट VEEs, तो VEEs आपको जैसे फॉर एग्जांपल कोई इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, कोई मैथ्स ऑनर्स है, कोई बीकॉम ऑनर्स है, तो आउट ऑफ 3 VEEs जैसे कि आपका CV1 CV2 होता है, तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स
एंड इकोनॉमिक्स। तो 3 VEEs में आपका एक है, फिर दो तो कॉलेज लेवल से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो डोंट रिक्वायर कि आपको वापस से वो सारी चीजें पढ़नी है। एंड जो 4 मॉड्यूल्स हैं उसमें एक आपका आता है एटीपीए विच इज एडवांस टॉपिक्स इन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। एक आपका जो एक आपका जो मॉड्यूल आएगा वो फंडामेंटल बेसिक्स का आएगा, वो बेसिकली आपका अगर आईआई से एक दो पेपर क्लियर है तो वो वहां से एग्जाम हो जाएगा आपका। एंड मेन जो है जो CP1 वाला जो पेपर होता है, तो CP1 वाला जो पेपर है वो बेसिकली यहाँ पर आपको इसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया गया, सेल्फ पेस्ड लर्निंग के फॉर्म में डिवाइड कर दिया गया कि भाई हाँ इसको आपको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है और आपको 8 छोटे छोटे मॉड्यूल्स को स्टडी करना है। So the point is that it's very practical oriented. Again, mugging up is very less. And India में आज के दिन पे 20 या फिर 30 FSAs ही होंगे, which is fellow of the Society of Actuaries. तो अगर आप इनिशियल लेवल पे अपना गेम को अप करते हो एंड इफ यू एक्चुअली क्लाइम अप द लैडर रियली सून, तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई अमेरिकन कंपनी अगर आज के दिन पे इंडिया में अपना एस्टेब्लिशमेंट करती है, तो बेसिकली वो लोग खोजेंगे FSAs कहाँ है। अगर आपको वो टैग मिल जाता है जितनी जल्दी हो सके, आप क्योंकि यू पीपल आर वेरी एक्सीलेंट इन स्टडीज राइट, तो वो अगर आपको टैग मिल जाता है तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा इन द लॉन्ग टर्म। लाइक जैसे मैनेजमेंट कंसल्टिंग जब चालू हुआ आज से 30 साल पहले 40 साल पहले, तो जो इनिशियल कंसल्टेंट्स है उन्होंने बहुत पैसा कमाया। तो द पॉइंट इज दैट इफ समथिंग इज न्यू एंड इफ इट इज गुड राइट, तो अब जैसे गिफ्ट सिटी है, आपको आपको क्या करना है लाइफ में। पहले लोग सीए एमबीए करते थे, एक्चुअली वाज अ वेरी नीश कोर्स, लोग आए तो अगेन देयर इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग अप राइट। एंड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स और इसका जो क्रेडिबिलिटी वाला जो पार्ट है, आज के दिन पे चीटिंग वगैरह का इतना जो झमेला जो हो रहा है कि भाई घर से एग्जाम देना है, ऑफलाइन में भी चीटिंग हो रहा है, लोग फंस जा रहे हैं, बैन हो जा रहे हैं, अगेन क्रेडिबिलिटी का इशू, वो सब यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। प्रोमेट्रिक लोकेशंस पे आपका एग्जाम होता है राइट, प्रोमेट्रिक लोकेशन से आपको एग्जाम देना है एंड आपको और कुछ भी नहीं करना है। सो बेसिकली प्रोमेट्रिक लोकेशंस जो है आपको वहीं से एग्जाम्स देना है। और इंडिया में 10 से 12 लोकेशन है प्रोमेट्रिक का। और इसका सबसे बड़ा खास बात क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा तो इस तारीख को कॉलेज का एग्जाम है, तो यहाँ पर क्या है, एक ऑप्शन रहता है आपके पास में 9 से लेके 20 तारीख तक, उसके बीच में एक डेट सेलेक्ट करके आप प्रोमेट्रिक लोकेशन में जाके एग्जाम दे सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कि भाई आपको कोई एक पर्टिकुलर डेट ही नहीं है। भाई आप एक चीज सोचो कि 6 महीना बाद उस एक डेट पे कुछ हो गया तो बहुत सारे लोग का एग्जाम मिस हो जाता है। तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर कवर्ड है, प्लस इसमें कोई भी आपका मेंबरशिप फीस नहीं, खाली एग्जामिनेशन फीस है। तो फॉर एग्जांपल आप 3 साल कोई पेपर नहीं दे रहे तो जबरदस्ती का मेंबरशिप फीस आपको नहीं देना है राइट। सो अगेन दैट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी गुड। नाउ आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल शो यू कि हाउ डज द वेबसाइट लुक लाइक एंड क्या एग्जामिशंस हैं। So then basically you will be able to understand better. So my screen is I think visible to all of you. दिख रहा है सबको मेरा screen? So I'll just type here exemptions from III to SOA. So देखिए यहाँ पर, ये देखिए। सो अगर आपने CS1 पास किया है तो एग्जाम P एंड VEE आपको मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स आपको एग्जाम मिलता है। अगर आपने CM1 पास किया है तो आपको FM एग्जाम मिलता है। अगर आपने CB1 पास किया है तो VEE अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अगर आपने CB2 पास किया है तो VEE इकोनॉमिक्स। तो ये बेसिकली आपके एग्जाम्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। ये जो एग्जाम्स है बेसिकली ये सारे आपके एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। एंड अगर आपके और भी कुछ आपने कुछ हायर लेवल पेपर्स भी क्लियर किया है तो आपको क्या करना है, ये वाला जो iiwaivers@soa.org आपको इसमें मेल डालना है कि आपके कितने सारे एग्जाम्स हो चुके हैं। एंड आपका वन टाइम फी ही है $100 का, दैट्स इट। $100 का आपका वन टाइम फी ही है, मतलब हर पेपर का नहीं है, दिस इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव तो वो आपको बता देंगे कि भाई हम आपको ये पेपर्स एग्जाम दे रहे हैं। तो ये वन टाइम फी है बेसिकली $100, दैट इज क्लोज टू योर 10,000 रुपीज राइट। एंड बेसिकली देखो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वन to all 4 waivers can be considered but the application fee for waiver credit will be the same. ठीक है। now I'll talk about तो जैसे पाथवेज की मैं बात कर रहा था आपसे,
सो एएसए में जैसे कि मैंने आपको बताया, एफएएम के बारे में बताया, फाइनेंशियल मैथ्स, प्रोबेबिलिटी, ई लर्निंग, जैसे देखिए 4 मॉड्यूल्स है आपके। फंडामेंटल्स ऑफ एक्चुअल प्रैक्टिस इज बेसिकली योर CP1, एडवांस टॉपिक्स इन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, जो आपका हायर लेवल प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का जो पेपर है। अगेन ये 4 में एग्जाम्स नहीं होते, मतलब जैसे ये आपका लर्निंग मॉड्यूल्स है। एंड फाउंड एक्चुअल साइंस फाउंडेशंस एंड प्री एक्चुअल फाउंडेशंस, ये दोनों काफी इजी है, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। बेसिक्स कराएंगे इन दोनों में, जो हम लोग बेसिकली ऑलरेडी पी और एफएम में कर चुके होंगे। सो बेसिकली ये दोनों बेसिकली आपका मॉड्यूल्स है, और ये दोनों आपके मॉड्यूल्स है। सो 3 VEEs हो गए, 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्स हो गए, और आपके 4 मॉड्यूल्स हो गए। ठीक है ना। अब बेसिकली अगर आप थोड़ा पीछे जाते हैं, सो वेट, सो सो फेलोशिप का अगर हम लोग देखते हैं, देखो, सो फेलोशिप में क्या है आपका, एक सेकंड देना। हम्म। सो देखो, ऐसे तो आपको चाहिए ही होगा 4 टेक्निकल कोर्सेज इंक्लूडिंग अ 2 कोर्स सीक्वेंस इन अ सिंगल प्रैक्टिस एरिया, द डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन कोर्स एंड द फेलोशिप एडमिशन कोर्स। बेसिकली आपको 4 टेक्निकल कोर्सेज करने हैं, 2 सीक्वेंस कोर्सेज एंड 2 एडिशनल कोर्सेज, डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन कोर्स करना है, एंड फेलोशिप एडमिशन कोर्स करना है आपको। तो बहुत सिंपल है। अरे बेसिकली मैं आपको दिखाता हूं, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए कितना सारा आपका वो है, एग्जाम ट्रांजिशन मतलब क्या है, एवरी करंट एग्जाम अवार्ड्स क्रेडिट फॉर वन कोर्स, ऑल एग्जाम ट्रांजिशन टू अ स्पेसिफिक कोर्स, और प्रोवाइड क्रेडिट फॉर वन एडिशनल कोर्स। जैसे 3 modules award credit for one additional course, all 3 modules must be from the same track, only one set of 3 modules can provide transition credit for one additional course। तो 3 अगर आप मॉड्यूल्स कर लेते हैं, देखिए जैसे यहां पर आपको क्या बोल रहा है, जैसे यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि ये तो आपका बेसिक हो गया, जैसे आपका फेलोशिप एडमिशन कोर्स, और ये दोनों तो आपका बेसिकली वो, इसमें कुछ एग्जाम टाइप का नहीं है। तो 4 टेक्निकल कोर्सेज है बेसिकली। सो 2 सीक्वेंस कोर्स एंड 2 एडिशनल कोर्स आपको करना है। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, अब जैसे आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड ईआरएम है, ग्रुप एंड हेल्थ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड इंडिविजुअल लाइफ एंड एन्युइटीज है, इन्वेस्टमेंट्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, क्रॉस प्रैक्टिस। ठीक है, अदर रिक्वायर्ड कोर्सेज। सो द पॉइंट इज दैट कि देयर आर सम मॉड्यूल्स एंड सम एग्जाम्स फॉर फेलोशिप, जैसे आपका आईएफओई में होता है, सिमिलर तरीके से यहां पर होगा। ठीक है। नाउ आई विल शो यू वन मोर थिंग। So if you talk about the membership part, member and candidate statistics. So अगर आप इंडिया का देखते हो तो इट्स क्लोज टू 700 एक्चुअलीज, 600 700 एक्चुअलीज। बट अगर आप यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके फेलोज है 20,500 एंड एसोसिएट है 13,000। सो इन टोटल देर आर 33,500 फेलो एक्चुअलीज, फेलो एंड एसोसिएट मिक्स, आई एम रियली सॉरी। सो दिस वाज 2023 डेटा। सो 33,000 एक्चुअलीज हैं एएसए एफएसए मिला के। So this is the strength of basically the SOA body. Now the only problem which they have solved is, if you talk about the exams, wait. So if you talk about the exams,
सो पहले ये थोड़ा महंगा था, बट अभी क्या हो गया है कि ये ठीक हो गया है। अब जैसे अगर आप देखते हैं एग्जाम रजिस्ट्रेशन में व्हेन आई गो, तो देखिए यहाँ पर आई शो यू। देखो, अब जैसे एफएएम का जो एग्जाम है फेब्रवरी में हुआ, ठीक है, फिर जुलाई में हुआ, फिर अक्टूबर में हुआ, तो साल में 3 बार हो रहा है। अब जैसे अगर हम लोग बात करते हैं पी का, तो एक जनवरी में हुआ, फिर मार्च में हुआ, फिर मई में होगा, फिर जुलाई में होगा, फिर सितंबर में होगा, फिर नवंबर में होगा। सबसे बड़ा बात क्या है कि अपने को ये झमेला नहीं है कि भाई ऑनलाइन देना है, घर से देना है, टाइपिंग का झमेला नहीं है, तो ऐसे करके बहुत एडवांटेजेस हैं। मेन जो अभी मैं सेक्शन से डील कर रहा हूं उनका, अगर आपका इनिशियल 4 पेपर्स क्लियर है तो आपका वो वाला पार्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है, राइट। सो द नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको एसआरएम, एफएएम, एलटैम, एस्टैम, इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। सो द पॉइंट इज दैट कि instead of being in so much of uncertainty, you can consider the SOA track as well. And आपको ट्रेनिंग का अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज कॉस्ट वाइज ऑल्सो इट्स वेरी इफेक्टिव फ्रॉम आवर पार्ट ऑल्सो, एंड एग्जामिनेशन पार्ट फ्रॉम योर पार्ट। एंड 90% ऑफ द कंपनीज दे आर हैविंग द रिक्वायरमेंट कि नहीं, हाँ भाई उनको पूरा रीइंबर्स करना है। ओके, सो from for every exam approximately you need to spend close to uh, somewhere around 35,000 to 40,000, so the cost also goes down, right? And if you clear, let's say suppose 3 VEEs, and your let's say suppose if you clear your uh, 5 exams, right, and few modules as well, so you're in a very good state, right? And what you can do is you can actually currently you can, if you're doing it from IAI, the things which are easier in IAI you can also mix and match. So आपका May वाला अटेम्प्ट भी काउंट होगा, नवंबर वाला अटेम्प्ट भी काउंट होगा, यू विल नॉट बी रिलाइंग ऑन कि भाई मेरे को IAI का ही ये पैटर्न लेना है। आप समझ पा रहे हो? तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बट आपका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए। सबसे बड़ा बात यह है कि आपका पढ़ाई नहीं रुकना चाहिए, वो पढ़ाई आपका बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, वो ही मेन टारगेट होना चाहिए आपका, राइट। सो नाउ आई विल ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चंस। अगर किसी को भी क्वेश्चंस है तो वो भी पूछ सकता है रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ क्लैरिटी। किसी को कुछ पूछना है तो वो भी माइक ऑन करके पूछ सकता है। Anyone who would like to ask any question? Yes. Sir, hi, am I audible? हाँ बोलो ना। Right. Are the exemptions just one way? मतलब IAI के papers ही exempt होते हैं SOA में, या if I clear a paper from SOA वो IAI में exempt हो? आई जस्ट चेक इट, बट मोस्टली रिवर्स होना तो चाहिए। आप बहुत सिंपल है, देखिए आज के दिन पे इट्स वेरी सिंपल। आप बस कल यहाँ जा सकते हो, तो जैसे IAI अभी आपका कैश का दे रखा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको इसको पूरा रीड करना होगा, वेट। चलो कोई बात नहीं सर, सर्च करके तो मैं कर लूंगा रिसर्च, आई फिगर नो, कोई बात नहीं। यहाँ पर थैंक दिया हुआ आपका, एक सेकेंड। IFOA का तो दे रहा है, ठीक है। एंड योर एक्चुअली पता है बहुत बार यहाँ लिखा हुआ नहीं होता है, बट आपको मेल करना होता है वो लोग को, ठीक है। अब जैसे देखो ना, IAI shall grant exemption to students who have passed CAS exams corresponding to IAI, right? अभी करेंटली तो नहीं दे रखा, बट आपका जो भी है ना, इफ यू क्लियर द एग्जाम्स फ्रॉम SOA, तो बेसिकली आप यहाँ पर पूछ सकते हो वो लोग से कि वो लोग, जैसे देखिए ना, थोड़ा बहुत तो दे ही रखा है यहाँ पर, बट जो भी होगा इनिशियल लेवल पे ही होगा। मतलब बोलने का मतलब ये, अगर होता भी है तो इवन इफ देर इज समथिंग बहुत बेसिक लेवल पे ही होगा। बट द पॉइंट इज दैट कि अभी अपना हायर लेवल पे तो वहां भी नहीं है ना, लाइक हायर लेवल पे तो
एसओए पे भी नहीं है। सो बेसिक तो अभी अपने मोस्टली आईआई से ही कर रहे हैं, एसओए का बहुत कम होगा जिसको एसओए से आईआई में शिफ्ट करना है, राइट? वो चीज या एनीवन एल्स? द ओनली थिंग इज कि यू नीड टू थिंक and it's very practical. You can go to SOA website, check out a few past paper questions of PFM, and काफी linked up है syllabus, but definitely there are new things there and there are some things which are not there. जैसे CM2 अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर नहीं है SOA में, राइट? तो ऐसे करके काफी सारी चीजें जो उतनी रेलेवेंट नहीं है वो सब चीजें हटा दी गई हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आपके जो पहले 4 एग्जाम्स हैं वो आप चाहो तो आप 1 साल के अंदर कवर अप कर सकते हो, लाइक 3 months फॉर पी, 3 months फॉर FM, 3 months फॉर SRM एंड 3 months फॉर FM। सो ये अगर आप टारगेट करके 4 एग्जाम्स 1 साल में पूरा ड्यूली क्लियर कर लेते हो तो बेसिकली दिस इज समथिंग, आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, राइट? कि भाई मैंने 1 साल में ये 4 एग्जाम्स कर लिए, एंड देन देर आर फ्यू मोर एग्जाम्स एंड VEEs दैट यू नीड टू क्रैक। अगेन VEEs अगर आपका IAI से CB1 CB2 किया हुआ है तो यू कैन गेट इट एग्जेम्प्टेड देयर एज वेल, जो VEEs वाला जो पार्ट है, राइट? So just continue your research, and students those who haven't cleared any paper, thinking आप WhatsApp भी drop कर सकते हो मेरे को, उसमें भी कोई issue नहीं है, but credibility is same, credibility is absolutely same, and institute is actually very good. Like from my point of view, if you see for example my admin work will get reduced because MCQ exams हमने पूरा पोर्टल बना रखा है, तो उसमें आप जितना चाहो MCQ दे सकते हो, राइट? एंड फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंट रिजल्ट आएगा तो वो क्लैरिटी भी रहेगा कि भाई अभी अपने को आने वाला 2 महीना क्या करना है, राइट? आपका कॉलेज एग्जाम बीच में पड़ रहा है, आप कोई भी एक फ्लेक्सिबल डेट लेके एग्जाम दे सकते हो, राइट? So basically these are few benefits that you get, right? And you can also check out the per exam cost, that will be roughly 15 to 17,000 के आसपास ही रहेगा। एंड जो कैलकुलेटर आता है इसका थोड़ा महंगा आता है। देखो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव कोर्स है एसओए, बट जो इनिशियल एग्जाम्स है जो अपने को कॉलेज लेवल पे जो देना है वो अपना काफी सही होता है इसमें, राइट? सो उस वजह से अगर आप देखते हो तो बहुत सही रहता है ये वाला। ओके, सो दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड। या यस सौम्या। So, considering current IAI situation, should we give the exams in May 2026? देखो ऐसा नहीं है मतलब कि आपको एग्जाम नहीं देना है, बट यू नीड टू मेक अ डिसीजन। और देखो मैंने आपके सामने एकदम बेस्ट रख दिया है, तो वैसा जरूरी नहीं है कि आपको वहीं से एग्जाम देना है। बट इफ आई नो यू पर्सनली आई फील दैट यू शुड डेफिनेटली गो फॉर एसओए, बिकॉज ये सबका सिचुएशन अलग अलग मेरे को देख के एसेस करना होगा कि भाई हाँ तुम्हारे लिए कुछ है वैलिड की नहीं है। अब जैसे मान लो किसी का 4-5 पेपर ऑलरेडी हो चुका है तो उसके, अब जैसे किसी का CS2, अब मैं ये भी सबको समझाता हूँ कि भाई अगर तुम देख रहे कि तुम्हारा CM1 2-3 बार से नहीं हो रहा है तो वो तुम IFOA से देके III में एग्जाम्प्ट ले लो, क्योंकि III 3-4 पेपर ही टारगेट करता है। एक तुम्हारा SP7-8 में से एक का रिजल्ट बहुत कम होता है, SA3 का रिजल्ट बहुत कम होता है, CS2 का रिजल्ट बहुत कम होता है, CM1 का रिजल्ट बहुत कम होता है। तो ये सारे जो पेपर्स, अगर मैं पहला 10 पेपर्स का बात करूं तो CS2 एंड CM1, मतलब ये दोनों तो अगर किसी का एक बार में हो गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट उसको IFOA से देके इसको एग्जाम्प्ट ले लेना चाहिए। क्योंकि वी आर नॉट इनटू प्रूविंग कि भाई देखो रिजल्ट बहुत कम हुआ और हम उसमें पास हो गया, नो। ये माइंडसेट से अब अपने को बाहर निकलना होगा। हमको वैल्यू ऐड करना है कंपनी में, तो वो एकदम टफ रिजल्ट है उसमें मैं निकाला हूं तो उससे कुछ नहीं होता है। भाई तुम्हारा रैंक आया तो वो एक सर्टेन लेवल पे ही हाईलाइट करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा रैंक आया तो सब चीज तुम्हारे लाइफ में इजी हो जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है, राइट? सो वो चीज समझना होगा। ठीक है ना? सो डेफिनेटली या ये समित। सर ये एसओए का ग्लोबल स्कोप कैसा है कंपेयर टू आईएआई? वेरी गुड, मोबिलिटी इज वेरी इजी बिकॉज पीपल कनेक्ट। अब जैसे मान लो मैंने FRN किया है तो अगर मान लो कोई ग्लोबल बैंक है जो मेरे को हायर करेगा तो दैट विल डेफिनेटली ऐड इन माय क्रेडेंशियल ना, कि मेरे को बैंकिंग के बारे में काफी अच्छा नॉलेज है बिकॉज मैंने वो क्वालिफाई किया है। So that is how people connect. So if you are a FSA, then definitely global mobility becomes easier. थैंक यू। Anyone else? Okay. So that was it from my end. And ठीक है, we'll keep having more such sessions. So maybe one session we can keep after a week.
एंड वी कैन डिस्कस मोर। आपके जो भी क्वेरीज हैं, कोई रश नहीं है, आप लोग आराम से डिसीजन लीजिए बिकॉज कंटेंट बिल्कुल सेम है, दोनों में कंटेंट क्लोज सेम है, राइट। सो वो चीज है। एंड अगर किसी का मन है कि नहीं मेरे को दे के देना चाहिए, तो डेफिनेटली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CM1, गो फॉर अ पेपर ऑफ FM, प्रिपेयर फॉर इट नाइसली, एंड देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीज मेरे लिए है कि नहीं है। सो वो एक चीज है, आपको थोड़ा ट्राई करना होगा, बट डेफिनेटली देयर इज लॉट्स बेनिफिट्स। मैंने बेनिफिट ज्यादा है नेगेटिव से, मतलब वो चीज है। नेगेटिव सिर्फ एक ही है, कॉस्टिंग पार्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 5 पेपर हो गया, तो जो 6th-7th पेपर होगा ना, वो थोड़ा एक्सपेंसिव एंड पे होगा, राइट। सो नेगेटिव खाली यही एक है जो वो आप जॉब में जाने के बाद दे रहे हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई नेगेटिव नहीं है, मतलब सोसाइटी का और कोई नेगेटिव नहीं है। और एक नेगेटिव जो मेरे ध्यान में आ रहा है, अगर कोई एकदम एक्सट्रीमली रिमोट लोकेशन से है तो उसको हो सकता है ट्रैवल करके एग्जाम देना पड़े, बट 10 से 12 लोकेशन में प्रोमेट्रिक है। और एक नेगेटिव जो मेरे ध्यान में आ रहा है वो ये है कि हो सकता है कभी आपका प्रोमेट्रिक लोकेशन फिल हो जाए अगर आपने पहले एग्जाम नहीं रजिस्टर किया है तो यही सब बेसिक नेगेटिव्स है जो पहले हम लोग के टाइम पे फेस होता था। बट क्रेडिबिलिटी पार्ट, कॉस्टिंग पार्ट, एंड अगर आप हर तरीके से देखते हो तो बहुत सही इंस्टीट्यूट है, मतलब। यस वैष्णवी। सर इसके लिए आपके जो हमारे जो एआई में सेपरेट क्लासेस है क्या पूरे FM पेपर्स के लिए एंड ऑल, या CM1 की क्लासेस हम रेफर कर सकते हैं, क्योंकि अभी लिया है ना क्लासेस। देखो जितना भी क्लासेस आपने लिया है ना, वो सारा आपका एडजस्ट हो जाएगा फीस में। ओके तो ये कोई नया स्कीम नहीं है जो मैं लेके आया हूँ, सो बेसिकली आई टोटली अंडरस्टैंड। तो वो सारा फीस आपका एडजस्ट कर देंगे इसमें। डेफिनेटली देखिए थोड़ा कुछ नया होगा तो डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एवरेज में हमारा जो फीस है वो 20,000 है सारे पेपर्स का। जो पहला 5 पेपर है उसका फीस 20,000 है, फ्लैट ही है, मतलब 19,400 है और 22,100 ऐसा कुछ है। तो बेसिकली आप फॉर एग्जाम्पल आपने 3-4 पेपर ऑलरेडी ले लिया है, तो व्हाट वी विल डू इज बेसिकली हम मोस्ट ऑफ द फीस उसको धीरे धीरे करके एडजस्ट कर देंगे, ठीक है ना। बट एक सर्टेन पार्ट रहेगा, जैसे क्योंकि एसओए में कुछ तो नया है ना, और जो फैकल्टी जो ट्रेन कर रहे हैं तो बेसिकली उनको भी हमको एक सर्टेन पार्ट देना है। तो आप ये समझ लो 60% तक हम एडजस्ट कर देंगे। तो अगर हम आपसे कुछ लेंगे भी तो भी दैट विल बी नॉट इन 5 डिजिट्स, मतलब 10,000 के ऊपर कुछ नहीं ले रहे हैं। सो होगा तो बहुत कम पार्ट होगा, वो मे बी 8,000 लेंगे, 40% तक लेंगे, 45% तक लेंगे, बट उससे ज्यादा नहीं लेंगे। 50% से ज्यादा किसी भी पेपर में हम नहीं लेंगे। आपका वो जो फीस जो आपने दिया है वो धीरे धीरे करके आपका सारा पेपर्स में एडजस्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होगा किसी ने मेरे को अगर 50,000 दिया, वो अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 19,400 फीस है बाकी आप मेरे को दे दीजिए, वैसे नहीं होगा। 50,000 को 5 पेपर में इक्वली एडजस्ट कर देंगे, तो आपको भी नुकसान नहीं होगा, हमको भी नुकसान नहीं होगा, वो चीज। बट व्हाट आई फील इज दैट कि मतलब अगर आप इंस्टीट्यूट वाइज देखते हैं बहुत अच्छा है। एंड मैंने खुद ने पूरा करिकुलम लास्ट 3 साल में स्टडी किया है। वी हैव गॉट रेफरेंस ऑफ फ्यू FSAs दैट आई विल ब्रिंग ऑन बोर्ड इन द कमिंग, वो ठीक है ना, कमिंग सेशंस, एंड इट्स एक्चुअली वेरी गुड। बट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखते हैं, हम अगर अपने स्टूडेंट्स को ऐसा देख रहे हैं, डिस्पाइट पेइंग सो मच ऑफ फीस, आपने मेरे को दिया 30,000 23,000 जो भी दिया, आपने इंस्टीट्यूट को इतना फीस दिया, बट फिर भी अगर इतना लैग आ रहा है, ये आपका सॉलिड करियर है जॉब बना रहे, तो ये आप लोगों के लिए, राइट। अगर आप मेरा देखते हैं तो मेरा फीस एक तरीके से कम है, मतलब कंपेयर टू एसओए का ट्रैक अगर आप देखते हैं, कोई अगर हमारा फुल एसओए ट्रैक लेता है द फीस इज 140 फ्लैट, ठीक है ना। वो आपको 14 इंस्टॉलमेंट्स में देना है 14 मंथ्स में। बट जबकि अगर आप IFOI देखते हैं, आई देखते हैं, उसमें हमारा फीस ज्यादा है क्योंकि वो टाइम से चलते आ रहा है, उसका कंटेंट भी हैवी है। तो बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट पार्ट इनटू दिस पिक्चर, क्योंकि इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रैक्स टू परस्यू। जिसको भी टाइपिंग में इशू है, लैग है, नॉट कॉन्फिडेंट इनफ इन पेपर भी, या फिर उसको ऐसा लगता है कि भाई इतना लैग है मेरे को, जैसे कोई क्लोज टू ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट है, उसको एसओए से ही करना चाहिए, बिकॉज उसमें पोटेंशियल है 1 साल में 4 पेपर क्लियर करने का। बट इफ यू थिंक अबाउट IFOI ट्रैक, उसमें इतना पोटेंशियल नहीं कि आप 1 साल में 4 मेजर पेपर्स क्लियर कर लो। अगर कोई ऐसा है जो अटेम्प्ट दे चुका है, उसका नहीं क्लियर हो रहा है, डेफिनेटली एसओए ट्रैक इज फॉर देम, क्योंकि इसमें आप एक अटेम्प्ट लो, फाइनल अटेम्प्ट लो, और आप ये देख लो कि भाई इसमें होगा कि नहीं होगा। अगर आपने उसमें क्लियर किया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको कोर्स दूसरा चूज करना चाहिए, बिकॉज देयर शुड बी अ स्टॉपिंग लिमिट ना। एक स्टॉप लिमिट होना चाहिए कि भाई देखो ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा। जैसे सीए में होता है, भाई तुम अटेम्प्ट देते चला जाएगा, तुम्हारा पूरा लाइफ बीत जाएगा, बट तुमको तो अपना करियर बनाना है ना कहीं तो तुमको अपना करियर बनाना पड़ेगा।
आज तुम लोग मैथ्स में इतना अच्छा है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर कैट जीमैट जीआरई, दैट इज अगेन अ डिफरेंट थिंग. सो ऑप्शंस बहुत है, तुम्हारा करियर तुमको कहाँ सेट करना है तुमको वही देखना होगा. नहीं तो ऐसा हो जाएगा भाई तुम एग्जाम देते जा रहे, तुम्हारा कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है एंड अल्टीमेटली तुम देखिए कि तुम्हारा 5-6 साल बीत गया, तुम कहीं लैंड अप नहीं करे. तो वैसा मेरे को नहीं करना है. जब मेरे पास सारा कोर्स का ही ऑप्शन है तो मेरे से ज्यादा अनबैस्ड एडवाइस आज के दिन पे कोई नहीं देगा. ठीक है ना. एंड इट हैज द पोटेंशियल कि आप 3 साल में 3.5 साल में कोर्स को पूरा कंप्लीट कर सकते हो, बिकॉज द क्वांटम इन विच वी कैन स्टडी पेपर्स वो काफी अच्छा है फॉर एसओए ट्रैक, राइट. एंड अगर किसी को आगे जाके जीआई ट्रैक में जाना है तो वो एसओए से कैश में भी जा सकता है, राइट. सो ऑप्शन पूरा खुला है. एंड जितना भी सारा हमने हाई लेवल इंडस्ट्री लीडर से बात किया है, जितना मेरा नेटवर्क है 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस, सो हमने देखा कि सबने जीआई में एसओए सॉरी आपने कैश का ट्रैक को अडॉप्ट किया है. सो बेसिकली मार्केट इज इवॉल्विंग. पहले ऑप्शंस नहीं थे, पहले तो खाली सीए लोग करते थे. आज के दिन पे इतने सारे ऑप्शंस है मार्केट में. देयर इज मीडिया, देयर इज कंटेंट क्रिएशन, देयर इज आर्ट्स, देयर इज लॉ. तो पहले ऐसा था कि 3-4 स्टीरियोटाइप ऑप्शंस थे, बट आज के दिन पे बहुत सारे ऑप्शंस है. सो इट्स जस्ट एवोल्यूशन ऑफ द knowledge and of the course. That's nothing. Definitely, Vaishnavi, we had a talk and we can discuss it more. So definitely, you all can just do more and more research, and definitely you can come to me in a call or maybe through WhatsApp, and we can guide you. But definitely there is lots for you, and do ask all your questions to me in the chat, and we can definitely answer. Okay. Thank you so much.